Hello students, a very pleasant welcome to you all and myself Yakesh Pandey, welcoming you all in my class of accountancy class 11th. Students, in the previous class we were discussing about the concept and features of bill of exchange and very much deal also with the previous features, means the precious features of bill of exchange, that you can say the objectives or the significances of the bill of exchange, where we have the importance of bill of exchange regarding the parties involved like seller or buyer, what are the merits and advantages that are benefited by the seller or the buyer. And today we are going to deal with some important terminologies regarding the bill of exchange, where we will deal with some important words which will deal in the bill of exchange. While dealing this chapter, we have to face these words, and before starting anything, we have to know that what are the concept of these words, what are the message that are running behind these words. So that is very important to have the vocab regarding the subject which you are going through and which you will go through. So that is why before starting anything, before starting the concept, before starting the terminologies, we have to know that some of the important vocab that will use in the terminologies regarding the bill of exchange. So what these words are and what are their concept behind that, let us deal about that. Okay, so let's start. The first word is the drawer. Drawer means the person who draws the bill. A person who is engaged in, the person who draw the bill means the person who is engaged in the drafting of this bill is known as drawer. Who draw or draft the bill is called drawer. He is also known as seller, because the seller is the person who draw the bill in the case of bill of exchange. Okay, the person who draw the bill or who draft the bill and accept it from the other person who is known as buyer is known as simply drawer. Okay, suppose A and B are engaged in the selling and purchasing process, and then the Mr. A sold some goods to B, and in that case A is the seller and B is the buyer. Okay, in that case, when we talk about Mr. A, then when we talk about Mr. A, then since A has sold the goods, and that is why he is entitled to draft the bill, he is entitled to draw the bill, and that is why he is also known as drawer. So message of the concept is that the person who is engaged in the process of drawing or drafting the bill is simply known as drawer. In the transaction of credit purchase and credit sale, the person who is seller, who sells the goods and services in credit, are simply entitled to the drawing of bill. Okay, now come to the second point, that is drawee. He is the party just opposite to the drawer, means the person who is accept the bill is simply known as drawee, and the drawee is the person who has purchased the goods on credit. Means in the previous example, if A has sold some goods to B and the authority and the right is of drawing the bill has transferred to Mr. A, in that case Mr. B, who has bought the goods on credit, will be defined as a drawee.
and that is why he is entitled to accept the bill and accept whatever the condition has been made by Mr. A. The drawer of the bill will be accepted to him, and he have to settle, Mr. B have to settle the payment as per the condition written on the bill. And once the bill signature signed by the drawee, it assumes that he has given the acceptance on the bill, and after this acceptance the bill become completely valid. एक बार जब ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया और उसके बाद ड्रॉवी ने अपनी साइन उस बिल पे दे दी, तो वो बिल पूरा वैलिड मान लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सिंस वी वेरी वेल नो दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज an unconditional document, the drawee could not claim that the person who have drafted the bill only he is entitled to collect the payment. That is why Mr. B could not insist to pay the debt to Mr. A only. If anybody in the reference of Mr. A comes to collect the payment, Mr. B have to make the payment and settle the debt that has been created by Mr. A. अगर Mr. B जो है बिल एक्सेप्ट करते हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या अनकंडीशनल कॉन्सेप्ट कहता है कि ए या ए की रेफरेंस से कोई दूसरा पर्सन अगर हमारे सामने आता है टू सेटल द बिल, उस बिल की पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए, तो हमें मिस्टर ए का वेट नहीं करना पड़ेगा, ड्रॉवर का वेट नहीं करना चाहिए, और जो भी पेमेंट कलेक्ट करने आया है विथ कैरिंग द बिल ऑल्सो विथ हिम, उसे हमें उस बिल की पेमेंट देनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में मिस्टर ए यानी ड्रॉवर के अलावा जो भी पर्सन बिल को कैरी करके बिल की पेमेंट कलेक्ट करने आता है, उसी पर्सन को हम कहते हैं पेई ऑफ द बिल, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू कलेक्ट द पेमेंट, द पर्सन who was authorized to collect the payment of the bill, collect the payment of the bill. It may be third party, might differ from the seller. It may be seller, may the third party as per the instruction of seller. Then whatever the person, whoever the person there is, will not the subject matter. The subject matter is that if the bill is mature and the due date arrives, then the person means who is namely as drawee have to be settled, have to be made the debt clearly to the person who is collecting for the payment. अगर ड्यू डेट आ गई है, बिल मेच्योर हो गई है, तो ड्रॉवी को पेई को पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो सेलर हो चाहे वो सेलर ना हो। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी भी अपने साथ बिल कैरी कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसके सेलर होने का वेट नहीं करेंगे, उसे थर्ड पार्टी के उसे जो है बिल की पेमेंट दे देंगे। ठीक है, तो पेई का मतलब वो पर्सन जिसने बिल को कैरी करके पेमेंट कलेक्ट करने के लिए ड्रॉवी के सामने प्रेजेंट किया है, दैट इज नोन एज पेई। ठीक है, इसके बाद जो है हम मैच्योरिटी की बात करें, तो मैच्योरिटी का मतलब कंप्लीशन ऑफ टाइम, मैच्योरिटी का मतलब कंप्लीशन ऑफ टाइम। ठीक है, और यू कैन से वेंडिंग और एंड ऑफ द टाइम पीरियड, end of the obligation period for which the loan has been taken, for which the time has been extended for the payment। ठीक है, यानी अगर मिस्टर ए और बी के क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करें और ये अज्यूम करें कि मिस्टर ए ने बी को गुड सेल किया और बी ने 1 महीने की मोहलत मांगी, तो जो 1 महीने की टाइम की एक्सटेंशन है, उस 1 महीने की टाइम की एक्सटेंशन को हम मैच्योरिटी टाइम कहेंगे, और 1 महीने बाद बिल पूरा मैच्योर हो जाएगा। जैसे ही वो ऑब्लिगेशन पीरियड
1 महीने का ऑब्लिगेशन पीरियड बीतेगा, बिल की मेच्योरिटी आ जाएगी, एंड नाउ द टाइम्स कम्स दैट द ड्रॉवर और द पेइंग विल सेंड एंड रिप्रेजेंट द बिल बिफोर द ड्रॉवर। यानी कि 1 महीने बाद सेलर खुद या किसी अपनी रेफरेंस से किसी अदर पर्सन को भेज सकता है फॉर द कलेक्शन ऑफ the amount that has been written and accepted by in the bill by Mr. Drawing, ठीक है। एंड इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हमारी ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है, ड्यू डेट का मतलब होता है कि जब हम मैच्योरिटी डेट में डेज ऑफ ग्रेस जोड़ लेते हैं, मैच्योरिटी डेट में डेज ऑफ ग्रेस जोड़ लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो अमाउंट आती है, जो डेट आती है, दैट इज सिंपली डेज ऑफ ड्यू डेट, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट आई सेड कि ड्यू डेट क्या है, इट इज नथिंग जस्ट द सम ऑफ मैच्योरिटी डेट एंड डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। यहाँ अगर हम डेज ऑफ ग्रेस की बात करें तो एडिशनल 3 और 2 डेज, 2, 3 और 4 डेज फॉर मेकिंग पेमेंट। हमारा जो ड्रॉवर होता है, अगर ड्रॉवी को मैच्योरिटी डेट के बाद कुछ एक्स्ट्रा दिन देता है, कुछ एडिशनल डेज देता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो एडिशनल दिन दिया जाता है उसी एडिशनल डेज को हम जो है डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। इसमें नॉर्मल कंडीशन में 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, इमरजेंसी की कंडीशन में, सॉरी गजेटेड हॉलीडे की कंडीशन में, हॉलीडे की कंडीशन में 2 दिन दिया जाता है और 4 दिन दिया जाता है फॉर द इमरजेंसी हॉलीडे, ठीक है। इमरजेंसी हॉलीडे की कंडीशन में आपके डेज ऑफ ग्रेस 4 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। एडिशनल 2 और 3 और 4 days that is given by the drawer to make the clear payment by the drawee, ठीक है। ड्रॉवर ड्रॉवी को जो एक्स्ट्रा डेज देता है, डेज ऑफ ग्रेस का मतलब एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। ये ग्रेस मीन्स एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा डेज जो हमारे ड्रॉवर जो है ड्रॉवी को देता है इन ऑर्डर टू सिक्योर द पेमेंट, इन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट वेरी क्लियर, दैट एक्स्ट्रा डेज आर सिंपली नोन एज डेज ऑफ ग्रेस। ऐसी कंडीशन में 3 तरीके से डेज ऑफ ग्रेस दिए जाते हैं। आइदर द डेज ऑफ ग्रेस में बी अलाउड इन काउंटिंग ऑफ 2, इन काउंटिंग ऑफ 3 और इन काउंटिंग ऑफ 4, ठीक है। अगर हमारा जो है मैच्योरिटी डेट, उस मैच्योरिटी डेट में 3 दिन हम नॉर्मली ऐड करते हैं फॉर मेकिंग द पेमेंट। अगर ये तीसरा दिन पब्लिक हॉलीडे होता है तो ऐसी कंडीशन में 2 एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, और अगर ये तीसरा दिन इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो ऐसी कंडीशन में 4 दिन मिलेंगे, ठीक है। यानी अगर हमारा सपोज करते हैं, सपोज दैट a bill has been accepted for a bill of 1 month accepted on 12th July, suppose 12th July 2021, then maturity date will be
maturity date is equals to 12th July plus 1 month, that is 12th August. Okay, in that case maturity date will be the date of drawing, ठीक है, जिस दिन बिल ड्राफ्ट हुआ है ना। और इसके बाद जो एक्सटेंशन हुआ है हमारा वो ओब्लिगेशन पीरियड, उस ओब्लिगेशन पीरियड को जोड़ करके हम निकाल देते हैं क्या, उस ओब्लिगेशन पीरियड को जोड़ करके हम निकाल देते हैं ड्यू मैच्योरिटी डेट, ठीक है। ये जो 12 अगस्त आएगी वो मैच्योरिटी डेट होगी। आई रिपीट, सपोज द 1 month bill is accepted on 12th July, then maturity date is equals to 12th July, that is drafting date, plus 1 month, that is obligation period, then the 12th August will be maturity date, ठीक है। अगर हमारी 12 जुलाई को बिल ड्रॉ हुई है और 12 जुलाई को उस बिल का ड्राफ्टिंग डेट है, तो उस ड्राफ्टिंग डेट में हम ओब्लिगेशन पीरियड को ऐड कर देते हैं और उस ओब्लिगेशन पीरियड को ऐड करके हम क्या दिखा देते हैं, हमारी मैच्योरिटी डेट, दैट इज 12th of अगस्त। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें ड्यू डेट की, तो ऐसी कंडीशन में उस मैच्योरिटी डेट में हम 3 दिन जो है जोड़ देते हैं, किसका, ये जो है हमारा जो है क्या हो गया मैच्योरिटी डेट, और इस मैच्योरिटी डेट में हम 3 दिन जोड़ देते हैं। अगर 3 दिन जोड़ने के बाद 15 अगस्त आएगा एंड 15th अगस्त इज पब्लिक हॉलीडे, है ना, पब्लिक हॉलीडे होता है, हमें सबको पता है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर पब्लिक हॉलीडे होता है। इन दैट केस द डेज ऑफ ग्रेस विल बी 2 दिन जोड़ा जाएगा, और ऐसी कंडीशन में 14 अगस्त को हमारी ड्यू डेट आ जाएगी, यानी कि हमें 14 अगस्त को अपने बिल की पेमेंट करनी होगी, ठीक है। आई रिपीट द कॉन्सेप्ट, if the bill has been drawn on 12th July and maturity date is given on 12th, maturity date will be calculated on the drafting date plus obligation period, which is 12th July plus 1 month, that is 12th of August. This 12th of August will be the date of maturity, okay। And apart of that, when we calculate the date of due date, then this maturity date will be added by 3 days. Then we could say the 15th August, which is holiday, may be the due date, but we have to take care of that कि अगर थर्ड दिन जो है 3 दिन जोड़ने पे पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, तो इस पब्लिक हॉलीडे की कंडीशन में हमारा 1 दिन डेज ऑफ ग्रेस कम हो जाएगा और हम केवल 2 दिन जोड़ करके 14 अगस्त में ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट ओके टू ऑल? होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल यू ऑल वेरी मच। आई रिपीट अगेन कि अगर जो है 1 महीने के लिए 12 जुलाई को एक बिल एक्सेप्ट की गई, तो मैच्योरिटी डेट जो होगी वो ड्राफ्टिंग डेट यानी कि 12 जुलाई को जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया उस दिन में ओब्लिगेशन पीरियड यानी 1 महीना ऐड करके कैलकुलेट हो जाएगी। यानी 12 जुलाई में 1 महीना ऐड करके 12 अगस्त को जो डेट होगी उस डेट को हम मैच्योरिटी डेट बोलेंगे। लेकिन अगर इसी डेट में एडिशनल डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन जोड़ा जाए तो उसमें 15 अगस्त आ जाता है जो कि पब्लिक हॉलीडे है, और वी वेरी वेल नो कि पब्लिक हॉलीडे की केस में डेज ऑफ ग्रेस 1 दिन कम कर दिया जाता है, ठीक है।
और ऐसी कंडीशन में 2 दिन जोड़ेंगे और ड्यू डेट हमारी हो जाएगी 14 अगस्त। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर हमने कोई बिल एक्सेप्ट किया सपोज 12 और 12 ऑफ अप्रैल को, ठीक है, 12 अप्रैल को बिल एक्सेप्ट किया और 1 महीने का बिल एक्सेप्ट किया और मान लेते हैं 15 मई को आपका इमरजेंसी हॉलीडे है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 15 अप्रैल में 1 दिन और जोड़ देंगे तो 16 अप्रैल जो होगी हमारी वो ड्यू डेट बन जाएगी। इन द केस व्हेन द थर्ड डे इज अ पब्लिक हॉलीडे, द ड्यू डेट विल बी काउंटिंग इन 2, and in case when the third day is emergency holiday, then the counting of days of grace will be 4. Okay, this was the concept of days of grace, and I would like to remind that due date is always equals to maturity date plus days of grace. ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग endorsement के बारे में, where the endorsement is what? Endorsement is nothing, just the transferring of bill. Okay, अगर हम अपने बिल को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, इंडोर्समेंट में हम क्या करते हैं, अपने बिल को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी एंटाइटल हो जाती है बिल की पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए, और ऐसी कंडीशन में उस थर्ड पार्टी को हम बोलते हैं पेई। ठीक है, यानी वो पार्टी पेई बन जाती है और ड्यू डेट को जाकर के हमारे ड्रॉवी से पैसा लेने का राइट उसे मिल जाता है। सपोज मिस्टर ए ने बी को सेल किया 10,000 रुपए का गुड्स और उसके बाद उससे बिल एक्सेप्ट कराया और इस बिल को अपने क्रेडिटर मिस्टर सी को दे दिया, तो उस बिल को सी को देने का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोर्समेंट। और इंडोर्समेंट की कंडीशन में जो थर्ड पार्टी जिसे बिल मिल रही है उसके पास ये राइट हो जाता है कि वो ड्यू डेट पे जाकर के ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट कर सके, और ऐसी कंडीशन में the drawee is liable to pay the debt to the payee. Okay, so endorsement is what? Endorsement is the process of transferring the bill to the third party, and after the transfer collection of that bill, this third party becomes the payee. Okay, and when we talk about the negotiation of bill, means it is concerned something about the settlement of bill. ड्यू डेट पे जब बिल की नेगोशिएशन होती है, इसका मतलब हम बिल की सेटलमेंट कर रहे हैं, उसके डेब्ट को क्लियर कर रहे हैं ताकि ड्रॉवी के ऊपर से बिल की लायबिलिटी खत्म हो जाए, मिनिमाइज हो जाए और उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करके आगे के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करे। तो इट मींस द ड्रॉवी when the drawee settle the bill and the drawer or payee accept the payment, this transaction is simply known as negotiation of bill. अगर A ने B से बिल जो है एक्सेप्ट कराया है तो ड्यू डेट पे B के द्वारा A या A के ऑर्डर से किसी और पर्सन को बिल की पेमेंट की जाती है, तो इसी पेमेंट को हम कहते हैं that the bill is being negotiated by the B, who is the drawee. Always mind, the drawee will never transfer his liability in the favor of any other one, but the drawer can transfer his right of collecting the payment of bill to any other one, and to whom this right will be transferred is known as the payee. अगर ट्रांसफर हो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले ड्रॉई चाहे
कि अपने पेमेंट की लायबिलिटी वो किसी और को ट्रांसफर कर दे तो ऐसा वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर ड्रॉवर चाहे तो वो अपने पेमेंट के कलेक्शन के अधिकार को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है। और अगर उसने ऐसा किया तो ऐसा करने के बाद जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को ड्रॉवर अपने बिल की पेमेंट करने का अधिकार ट्रांसफर कर रहा है, उस पर्सन को हम कहेंगे दैट ही इज द पेई एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द बिल इज नोन एज इंडोर्समेंट एंड एट द ड्यू डेट द पर्सन who will collect the bill and discharge the liability of the drawee is simply defined as the negotiation of bill, which is also known as settlement of bill. इसके बाद last but not the least, that is dishonor, means denying the payment, or you can say not making the payment on time. ठीक है, ड्यू डेट को अगर ड्रॉवी ने किसी भी कारण से, ठीक है, पूरे पैसे का भुगतान नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में उस बिल को हम डिसऑनर्ड बिल मानेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखें कि पेमेंट पूरी अमाउंट के साथ होनी चाहिए, पार्शियली और निगेटिवली इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी पैसा मिलेगा तो पूरा मिलेगा, अदरवाइज आधे पैसे की कोई कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। आधे पैसे की भी वही एंट्री होगी, वही कॉन्सेप्ट होगा जो पैसा ना मिलने का होगा। मीन्स द बिल इन दैट डेट विल बी ट्रीटेड एज अ डिसऑनर्ड बिल। और डिसऑनर क्या होता है? नॉट मेकिंग पेमेंट ऑन द ड्यू डेट फुल्ली। ड्यू डेट पे अगर ड्रॉवर को पैसा नहीं देता है तो इट इज नोन एज डिसऑनर ऑफ द बिल। होप द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब अगली क्लास में हम अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और जानेंगे ड्रॉवर और ड्रॉवी अपनी बुक्स में एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल।